किरपा निधान जगत गुरो। हे संसार ताप हरण है, करुणामय सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाल है, दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ खीन समय, सिमरंत नानक राम दामोदर माधव है। फरीदा हों बलहारी तिन पंखियां, जंगल जिन्ना वास। कर चुगन थल वसन, रब ना छोड़न पास। अमा बख्शो बख्शिंदो दस्तगीर, रजा बख्श रोजी देहो दिल पाजीर। हमू मर्द बायद शबद सुखनवर, नाशिक में देगर दर्द हाने देगर। चवर छत्र तख्त दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र गोद विच विराजमान गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी, गुरु महाराज की बनाई हुई फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की गोद विच एकत्र होके अपने जीवन नूं समय नूं सफल करन दे लई आप समूह संगतां ने बड़े प्रेम सहित गुरमुख प्यारियां पासों तुरकी बाणी दे कीर्तन सरवण कीते हन। कुछ समा मनचित बिरतियां नूं एकाग्रता बख्शो। आप समूह संगत वालों, इटली दीयां संगतां वालों गुरमत के प्रचार प्रसार लई विशेष उपराला करके ये समागम रखे गए हैं। आओ कुछ समा समय नूं सफला करन दे लई जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अगमी मुख वाक है उसकी विचार श्रवण करना करो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला तीजा। माया ममता मोहनी, जिन बिन दंता जग खाया। मनमुख खादे गुरमुख उबरे, जिनी सच नाम चित लाया। माया ममता मोहनी, जिन बिन दंता जग खाया। मनमुख खादे गुरमुख उबरे, जिनी सच नाम चित लाया।
ਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭੱਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਨੇ। ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਵੇ, ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਗਿਣ ਲਵੇ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਮਾਪ ਲਵੇ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਰੋਮ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਘਾਹ ਫੂਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿਣ ਲਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਵੇ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਖਸਮ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੈਸਾ ਚੌਂਕੜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਚੌਂਕੜੇ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਕ ਭੱਟਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋਰੋ ਮਾਵਲ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨ ਆਵੈ, रव सस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावै, रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, कनहर बूंद बसोरो मावल। आ साडे निके निके रोम ने ते धरती दे रोम की ने? ये जिहड़ा घाह उगदा, पेड़ पौधे वनस्पति, जदों बदल चढ़ के आउंदा है, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਈਕਾ ਨਾਲ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸੋਰੋ ਮਾਵਲ, ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨਾ ਆਵੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੋਮ ਨੇ, ਘਾਹ ਫੂਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬੂੰਦਾਂ ਡਿੱਗਣ, ਰੁੱਤ ਹੋਵੇ ਬਸੰਤ ਦੀ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਫੁੱਲ ਉੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਨਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋਰੋ ਮਾਵਲ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ। ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਿਰਨਾਂ ਬਖੇਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ਗਨ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਮਾਪ ਲਈਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਉਦਰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਢਿੱਡ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੈ। ਕੋਈ 5-4 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦਾ, ਕੋਈ 5-10 ਛਕਦਾ, ਕੋਈ 1-2 ਛਕਦਾ। ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਵੀ 2-2.5 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਛਕ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਐਡਾ ਉਦਰ ਇਹਦਾ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਹਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਐਸੀ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ। ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕਉ, ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ, ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕਉ, ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮੇ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਬੱਦਲਾਂ ਚੋਂ ਬਰਸਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅੰਤ ਛੱਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕਉ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ। ਅਸੀਮ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੰਮ ਬੋਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ। ਰੁਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇੰਨਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਚੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਔਰ 3 ਮਹਾਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਐਸੇ ਸ਼ਿਵ ਬ੍ਰਹਮ ਵਰਗੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੜਫਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਉਹਦੇ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮਾਧੀ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਥਿਆਸ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਦੇ ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਆਖੇ ਬੋਲੀਐ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਐ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਖੇ ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਤੇ ਆਪ ਮਿਥਿਆਸ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਨਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਿਥਿਆਸ ਲਿਖਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ। ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਥਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਜੇ ਗਿਆਨ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਮ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਵੀ ਮਿਥਿਆਸ, ਆਹ ਵੀ ਝੂਠ, ਆਹ ਵੀ ਝੂਠ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆਸ ਆਖੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਵੀ ਮਿਥਿਆਸ। ਲਈ ਫਿਰਿਓ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰਿਓ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਇੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇ ਗੈਰ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਖਣਾ, ਕਈ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਕਿਆਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੰਦ ਜਿਹਾ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਲੀ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੜਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਆਖਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਈ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ 4 ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਪੜੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ। ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ, ਰੁਦਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਭੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਪ ਸਕਦਾ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮੇ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ। ਰੁਦਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪੂਰਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੋ ਮਾਵਲ ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨ ਆਵੈ ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕਉ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਕੋ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਕੋ ਪਾਵੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਕਵਿਜਨ ਭਲ ਉਨਹਿ ਜੋ ਗਾਵੈ।
पूरे गुरु ने ज्ञान बख्श दिता होवे ते इन्नी क सुरती उच्ची चले जाती है, बदलों दीयां बूंदां भी गिण सकता है, समुंदर का पेट भी माप सकता है, नदर इन्नी अगे चली जाती है। जिहड़ा साडी नदर नूं पाताल आकाश नहीं दिखता, इत्थों तक साइंस नूं माइक्रोस्कोप वरत लैन, टैलीस्कोप वरत लैन, वो खंड ब्रह्मंड नहीं दिखते। बापू नानक निरंकारी जपजी साहिब विच लखां दस गया इन्हां नूं नौ की दिखे ने, क्योंकि महापुरुषां दी नज़र दूर तक है। खैर वो तो आप नारायण ने, ते जिहड़े उहदे प्यारे ने वो ये समर्था उन्हां नूं भी बख्श दिंदा है। गुरु दे ज्ञान नाल ये ताकत मिल जाती है समुंदरां दा पेट माप देण। गुरु का ज्ञान लैके गंगा दियां छल्लां कोई गिण दवे, क्योंकि गुरु असंभव नूं संभव कर दिखाउंदा है। गुरु का ज्ञान लैके शिव जी की समाधि का भी अंत पाया जा सकता है। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कविजन भल उन्हें जो गावै। भट्ट कहंदे भाई जी बूंदां गिण लईआं, छल्लां गिण लईआं, समुंदरां दे पेट माप लए, सूरज चंद्रमे दीआं किरनां गिण लईआं, रुद्र दी समाधि का अंत ते पा लिया, पर कोई माइका लाल रूहे जमीन ने पैदा नहीं किया जिहड़ा कित्यों भी ज्ञान लैके गुरु अमरदास दे गुणां दा अंत पा सके। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कविजन भल उन्हें जो गावै, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवै। तेरे विच किन्ने गुण ने ये तू आप दस सकदा है गुरु अमरदास, कोई जुबान बनी नहीं है। शिव जी की समाधि का अंत पै सकता है, समुद्रां नूं माप सकदा है, तारे गिण सकदा है, शरीर दे रोम गिण सकदा है, पर गुणां नूं नहीं गिण सकदा गुरु अमरदास दियां नूं। वो है भलियां दे गुरु अमरदास, समुची कायनात दे सिर दा मालक। महाराज आखण लगे तेरे गुणां की गिणती केवल तेनू इसलिए है क्योंकि तेरा शरीक है नहीं कोई, तेरे बराबर है नहीं कोई, तेरा कंपैरिजन किसी ना कीता नहीं जा सकता। कौन है दुनिया विच जदों भी किसी दे गुण गिणने ने कोई कंपैरिजन तो चाहिए ना भी फलाने बंदे जिन्हें इहदे विच गुण ने। इत्थों तक महापुरुषों दीयां उदाहरणां आपां दे दिंने आ। जे कोई बंदगी वाला महात्मा है आपां उहनूं कंपेयर कर दिंने कोई पिछले महापुरुष दे नाल, पर गुरु अमरदास दा शरीक पैदा नहीं होया, ना उहदे बराबर कोई है, ना उहदे बराबर कोई हो सकदा, ना उदाहरण ही दित्ती जा सकती है। वो भलियां दे गुरु अमरदास ने माया की ताकत बयान की है, उहदे ते हुक्म विच चलदी है, पर साडा जो असर करदी है वो बयान करन लगे ने। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह सोठ राग विच ये फरमान करते ने, कहिंदे माया ममता मोहनी जिन विणदन तां जग खाया। माया का सुभाव मोहन वाला है, जिवें बच्चा सारियां नूं मोहंदा है, माया सब नूं मोह लैंदी है। और कमाल की गल है, कहिंदे इहदे दंद भी नहीं हुंदे ते इन्हें बिना दंदां तो ही सारे जगत नूं हड़प्या होया है, सारे ही इन्हें खाधे हुए ने, सारे ही इस दे डंगे हुए ने। अनक माया जांकी लखी ना जाए। ध्यान दिओ, माया एक प्रकार की नहीं हुंदी। असीं नोटां नूं ही माया समझ के बैठे हैं, कई प्रकार दे नाल सानूं मोहदी है। जे बाणी नूं ध्यान नाल पढ़ो ते माया मां लई भी आउंदा है, भूल है, चूक है, बारक, तू हर पिता माया, तू हर पिता माया, इहदे माता लई आया है। मां नूं भी माया आख्या गया है, लक्ष्मी नूं, पैसे नूं, नोटां नूं भी माया कारण धावही मूर्ख लोक अजान। नोटां नूं भी माया आख्या गया है। गिणदे जाओ, जगत रचना का कारण भी माया है, परमात्मा तो दूजे नंबर ते, जिहदे बारे चंडी दी वार च आउंदा ना, खंडा प्रथम साजक है जिन सब सह सार उपाया। एका माई
जुगत व्याही तिन चेले प्रवान, ये ओही माई है जिहड़ी परमात्मा की साजन शक्ति है। महाराज सच्चे पातशाह कहते ने माया हर प्रकार दे विच साडे इर्द गिर्द रहिंदी है। मां लई भी माया लफ्ज़ आ रहा है। दुनिया नूं साजण वाली शक्ति लई परमात्मा दे हुक्म विच साजण वाली शक्ति लई भी माया लफ्ज़ आ रहा है। इसे प्रकार दे नाल पातशाह कहंदे ने ये जिहड़ी करंसी है साडे कोल, इहदे लई भी बाणी विच लिख दिता गया भी ये भी माया है। इउं बयान करदियां करदियां दूसरा पक्ष माया दा ये है छल कपट धोखा। जिहड़ी चीज़ सानू ठग लवे वो भी माया है। माया माई त्रै गुण परसूत जमाया, ये वो माया है जिन्हें तिन्ना गुणां विच देवते तिन्ना गुणां विच लोक पैदा किए। ब्रह्मा शिव जी वर्गे पैदा किए परमात्मा की किरपा दे नाल। कपट छल भुलेखा भरम ये भी माया है। हुण इत्थे माया किहड़ी है जिसने सारे जगत नूं खाधा होया है। गुरु साहब ने बड़ा सौखा कर दिता समझण लई। उदां असीं समझदे सी भी शायद कल्ले नोटां दी गल कीती है। आनंद साहब जदों पढ़दे जे ना उहदे विच इह जिक्र आउंदा, इह माया जित हर विसरै मोह उपजै भाओ दूजा लाया। भाव दूजा की है? द्वैत। रब तो बिना किते होर प्यार लग गया है, किसे होर नाल प्रेम पै गया है। हर वो वस्तु जिहड़ी तेरे ते गुरु नानक दे दरम्यान कंध बन गई है, तेरे ते परमात्मा दे दरम्यान कंध बन गई है। गुरु नानक दा प्रेम तू भुल के प्रेम उथे ला बैठा है। हुण तुसीं गिणदे जाओ, मैनू ते अपने अंदर पता भी मैं किथे किथे जुड़िया ते तुहानूं आपदा पता होवेगा। सीधी जी गल है, कोई न्याणिਆਂ ना जुड़िया, कोई घर वाली ना जुड़िया, बीबी घर वाले ना जुड़ी है, बच्चों नाल असीं जुड़े हैं, कोई जॉब दे नाल जुड़िया। वो ये नहीं कह रहे भी जॉब छड्ड दो, न्याणे छड्ड दो, घर वाली छड्ड दो ते पहाड़ां नूं चले जाओ, नहीं। पातशाह समझाए रहे ने भी वेखो गुरु नानक साहब अकाल पुरख परमात्मा की बख्शिश सदका ही ये जिन्नियां भी दातां ने दौलत शोहरत परिवार तख्तो ताज ये मिले ने, ते जिस करके मिले ने पहल तो उहदी बनती है, प्रेम तो उहदे नाल करना बनता, तो फिर जिहड़े पदार्थ ने फिर उन्हां नाल प्रेम करो। हुण रुख ला लिया है तो जे रुख दियां जड़ां नूं पानी नहीं दोगे तो फल कित्थों मिलेगा। गुरु नानक है रुख, ये सब फल ने जिन्हें सानू मिले हुए ने। तो जे सदा ही फल भोगने चाहना है तो जड़ां नूं पानी लाउणा पैना, सिंचना पैना बाणी दे नाल। गुरु नानक नूं खुश हरियां भरियां रखना पैना है। पर असीं की करते हैं, सानू दे अंबां दा मतलब है जड़ां वल साडा ध्यान कोई नहीं है, फलां दा मतलब है रुख वल ध्यान कोई नहीं है। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह कहंदे ने तेरे ते परमात्मा दे दरम्यान जिस भी वस्तु ने तेरा ध्यान उघेड़ के अपने वल कर लिया है, परमात्मा तेथों दूर हो गया है, वो माया है। ये हुण तुसीं वेखना कईयां नूं नोट गिण तो ही वेल नहीं है। वो कहिंदे जी जॉब करी दी है, समा नहीं मिलता, गुरु घर कित्थों आईए। वो नोट छल कपट ठग रहे ने बंदे नूं, माया दा रूप बन गए। किसे दा नवां विआह होया, गृहस्थ विच ते पै गया है, ते जे समझे भी गृहस्थ सफला जीवन सफला है, विआह कराउंदे ही हुण सचखंड मिल गया, भुलेखे विच है। बाणी ते पढ़नी पैनी है, बाणी ते पढ़नी पवेगी। औरंगजेब दे कई विआह सन, इहदा मतलब ये नहीं है भी सचखंड मिल गया उसनूं। गल ते है भी रब दे गुण ते गाउणे पैणे आ। किसे भी धर्म विच है, किसे भी मार्ग ते है, उदासी है, निर्मला है, गृहस्थी है,
जिन्ना चिर बाणी तेरे कोल है नहीं राह नहीं खुलदा, बूहा नहीं खुलदा सचखंड दा। हुण न्याणे हो गए, फिर न्याणे ही चट्टी जाने असीं, फिर गुरु घर जाना विसर गया। काम चंगा चल पिया, माया गिणी जाने हैं। ये कर्म करदियां गुरु नानक दा दर नहीं सी भुलना चाहिए। एक कहावत है, हथ कार वल ते चित यार वल। अंदरला इधर टिकिया होना चाहिए सी, ਇਹਦੇ ਦਿਦਾਰੇ नहीं सी छड्डने चाहिए। ਇਹਦੀ बदौलती ते परिवार मिलिया, ਇਹਦੀ बदौलती ते पदार्थ मिले सन। पर किसी ना किसी रूप विच माया ने हर एक नूं ਚੱਬਿਆ होया है। कोई ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਚੱਬਿਆ ਗਿਆ, कोई नोटां दे, कोई परिवार दे, कोई राजा बन गया, कोई तख्त दे मोह ਵਿੱਚ। इस प्रकार दे नाल महाराज कहंदे ने, कंचन नारी मह जियो लुभत है, ओह मीठा माया। इत्थे किसे लई जिक्र है भी घर वाली माया का रूप बन गई। घर वाली ना मोह बड़ा सी, किसे दा सोने विच मोह पै गया है, किसे दा कारोबार विच मोह पै गया है, कोई पुत्र नाल, कोई कलत्र दे नाल जुड़िया आया। ममता मोह सो बंधना। कोई माँ बच्चे नाल प्रेम ऐसा करती है, परवरिश विच ही उम्र नगा दिंदी है, गुरु दा दारी भुल जाता है। किसे लई ममता ही माया बन गई है। पुत्र कलत्र सो धंध, ममता मोह सो बंधना। पुत्र कलत्र सो धंध। धंधियां दे विच गलतान होके गुरु विसर गया, जह देखा तह जेवरी माया का संबंध। कहंदे किसे ना किसे बन्नियों माया दी रस्सी विच सारे ही जकड़े हुए ने। पर इन्हां रस्सियां दा पता अपने चित अंदर ही है। तुहानूं अपने गलां दा पता भी किहड़ा किहड़ा फाह पिया ते मैनूं आप दा पता, कोई किसे बारे नहीं दस सकदा। कई बार असीं अगले ते तूं मत लाउने भी तूं माया दा पटिया है ते विचों सप वर्गा सुभाਅ साडा, नोट साथों भी छड्डे नहीं जांदे। अगले नूं कह दिंदे आपां। इउं हर एक दे उत्ते ये जेवरी है। महाराज आखण लगे, मोहनी जही होके, प्यारी जही होके, किसे ना किसे रूप दे विच ਚੱਬ के सुटी आउंदी है दुनिया। माया ममता मोहनी, जिन विण दन तां जग खाया। दुनियावी बंदा ते इहदे च जकड़िया ही होया, ते कई बार चोले वाले भी जकड़े जाते हैं। ध्यान दिओ, गुरबाणी दे विच एक फरमान आउंदा है। महाराज सच्चे पातशाह ये समझाउंदे ने, आथ सैल नीच कर होए, आथ देख निवै जिस दोए, आथ होए तां मुग्ध सियाना। गल करन दी अकल ना होवे किसे नूं। कई आपां वेखे ने बंदे, उन्हां नूं परे पंचायत विच गल नहीं करनी आउंदी। चंगा भला किसी का फैसला हो लिया होंदा, कोई ऐसी चवाती सुट्टते ने, अग ला के मारते हैं। कोई एनू भज जाता पंच, कोई एनू मैंबर भज जाता। बचन ही इदां दा कर देना, अग लाऊ जंतर उन्हां दा नाम पिया हुंदा पिंडां भी, जिथे बहिंदे ने अग ला के ही उठते हैं। इधर दी उधर चलाकियां करनियां। चुगलखोर बंदा, और ऐसा बंदा गुरमत विच कबूल नहीं है। अग लाउण वाला बंदा कबूल नहीं है। श्लोक पढ़ियो फरीद जी दे, दिल दिखाउण वाला बंदा कबूल नहीं है। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने, उहनूं गल करन दा भावें चज ना होवे, वो मुग्ध होवे, वो मूर्ख होवे। जे ते गरीब है फिर तो किसी पंचायत ने बहन ही नहीं देना। किते गल करेगा लोगों ने टोक देना, जा तैनूं ते अकल ही है नहीं। तो जे किसी शाहूकार दा मुंडा है ना, ਚੱਜ है नहीं गल करन दा, पर झोली विच दाने ने, झोली विच माया है, तो भावें सड़ी गली गल करे तो एवें ही हथ चुक चुक, वो बल्ले बल्ले बड़ा बुलारा, बड़ी गल आउंदी है। इस नोटां दी खेड है सारी। है जिहदे कोल पैसे ने उहदी वडियाई है। आत सैल नीच कर होए, नीच तो नीच बंदे दे घर भी जे नोट ने। आत देख निवै जिस दोए, होया की है, दुनियावी बंदा ते झोगी रहा नोट वेख के, धार्मिक लिबास पाउण वाले भी उहदे अगे झुकदे ने।
पैसे वाले अगे धार्मिक जगत दे लोग आथ देख निवै जिस दोए संसारी ते निरंकारी दोवें झुकते ने उहदे अगे। हाँ महापुरुष बंदगी वाले भी होंदे ने, ये हर एक ते कटाश नहीं है, पर ज़्यादातर यही हुंदा है। माया वाले बंदे अगे पातशाह कहंदे ने गरीब ते झुकी रहा है, संसारी ते झुकी रहा है। कई धार्मिक लिबास नूं पहनण वाले भी झुक रहे ने। आथ सैल नीच कर होए, आथ देख निवै जिस दोए, आथ होए तां मुग्ध सियाना। की होया है? कहंदे माया सी, कमलियां दा मुंडा सियाणा समझिया गया है। भगत बिहूना जग बहुराना है, भगती तो हीने लोग बौरे हुए फिरदे ने। मतलब कि धार्मिक लिबास पहनण वालियां नूं भी विण दंतां जग खाया माया ने खाधा होया है, माया ने प्रभावित किया होया है। सो गुरु साहिब सच्चे पातशाह ये बचन कहते ने। वेखो माया की खेड ते है। एक महापुरुष होए ने पंडित हरदयाल सिंह जी। वो जिहड़ा पंडित हरदयाल सी, वो जिहड़ा महापुरुष सी, भावरस अमृत उन्हां दा ग्रंथ पढ़िओ किते। उन्हें माया ते बड़ी कटाश की है। कहंदे कमाल दी चीज़ है, जदों हुंदी है रिश्तेदार की, साग संबंधी की, सज्जन की, मित्र की, सब तरले कढ़दे ने, सब नेड़े नेड़े फिरदे ने। ते जदों रहिंदी नहीं इदां उड़ जांदे ने जिद्दां गुड़ ना मुक्कियां ते मक्खियां उड्डदियां ना। गुड़ मुक्के ते मक्खियां उड़ जांदियां, मिठा मुक्के ते मक्खियां उड़ जांदियां, इदां उड्डदे ने। फिर कई साखियां तुहानूं मिल जाणगीआं इतिहास विच। शायद उहदा नाम प्रेमा कोड़ी करके साखी आउंदी है गुरु अमरदास साहिब के इतिहास विच। प्रेम चंद नां सी, जदों नोट सी झोली विच ते सारियां प्रेम चंद कह के बुलाउणा भी चंद वर्गा है। ते जदों नोट ना रह गए तो नाम पै गया प्रेमा कोड़ी। ऐसी नज़र है दुनिया की। चार पैसे ने तो चंद वर्गे लगोगे, नोट है नहीं तो कोड़ी। खैर मेरा है प्रकरण नहीं। सच्चे पातशाह दीन दुनिया के मालक ने कई महापुरुषों नूं नज़र दी है, और वो वेख के फिर बड़ियां महान काव्य रचनावां करते हैं। उन्हां चों एक पंडित हरदयाल भावरस अमृत विच वो लिखते हैं। कहंदे होया की है भी बूर पिया, अंबियां नूं बूर पिया। हुण निआणिआं नूं गांह ते कोई पता होना नहीं भी बूर की हुंदा। ते चलो तुहाडे चों ते पंजाब आउंदे जांदे ही रहिंदे। अंबियां नूं पिया बूर। रुत ऐसी सी, बसंत की रुत ऐसी सी, बूर पिया ते कोयल ने मिठे मिठे गीत गाए। कोयल ने गीत गाए। अंबां नूं बूर पिया, खुशी दे नाल कोयल ने मिठे मिठे गीत गाए। बसंत दे विच फुल महके टहके, भौरियां ने सुगंधी माणी। अज हालात ऐसे बन गए ने, पतझड़ दी रुत आ गई है। अज बूर नहीं है अंबियां ते, अज कोयल मिठा गाउणा ही छड्ड गई है। अज पतझड़ विच फुल मुरझा चुके ने। वो जिहड़े रस पीण वाले भौरे सी, सुगंधियां मानण वाले भौरे सी, भौरे नूं चस्का बड़ा रस दा। मृग मीन भृंग पतंग कुंचर, एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जा मह ताकी केतक आस। इन्हां विकारां चों ये बड़ा तकड़ा विशा विकार लगा भौरे नूं। चस्का बड़ा है नक दा, सुगंधियां मानण दा। पर पतझड़ वेले किसी फुल दे नेड़े आउंदा ही नहीं है। ते कवि जी कहंदे हो कोई कोयल नूं पुछो, वो कोई भौरे नूं पुछो भी की गल है, हुण फुलां नाल यारी छड्ड गया। हुण पतझड़ आई ते फुलां नाल यारी छड्ड गया कि सारी दिहाड़ी खुशबूइयां मारनों ने चक्कर लाउंदा सी घेरे घेरे तूं। कोयल नूं भी कोई पुछो भी हुण की होया है।
ਬੂਰ ਸੀ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗਲ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੋਠੀ 4 ਦਾਣੇ ਨੇ ਚੱਕਰ ਬੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਕਈ ਭੌਰੇ ਤੇਰੇ ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਫਿਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬੂਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੁਗਧ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਆਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿਆਣਾ ਆਖਣਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਾਇਆ ਨਾ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਚੱਕਰ ਘਰ ਦੇ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਖੰਡ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਵਿਣ ਦੰਤਾਂ ਜਗ ਖਾਇਆ, ਦੰਦ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚੱਬੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਧਾ ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਤਰ ਮੈਂ ਫਲ ਹੇਰ ਬਿਹੰਗਮ ਕਹਿ, ਗੱਲ ਆਵਤ ਹੈ ਸ਼ਬ ਚੌਂਚ ਪਸਾਰੈ। ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਇਲ, ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਇਲ, ਨਰ ਆਵਤ ਹੈ ਕਰਦਾਹਾ ਲਗੈ। ਕਵੀ ਦੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਇਲ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਭੌਰੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਨਰ ਆਵਤ ਹੈ ਕਰਦਾਹਾ ਲਗੈ, ਨਰ ਔਰ ਬਿਹੰਗਮ ਦੂਰ ਪਧਾਰੈ। ਪੱਤ ਝੜ ਆ ਗਈ, ਮਾਇਆ ਝੜ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਭੌਰਾ ਤੇ ਕੋਇਲ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਮਝ ਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਗਰਮ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਰਿਟਾਇਰ ਤੇ ਮੰਜੀ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰ ਤੇ ਡਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ। ਬਾਪੂ ਉਹੀ ਹੈ, ਲਹੂ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੁੜਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਥਈਆਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲਹੂ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗਊ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ, ਫੰਡਰ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਸਭ ਪੈਸੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਸੱਜਣਤਾਈ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਇਆ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਫਸਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ, ਮਨਮੁਖ ਖਾਧੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਬਰੇ, ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਉਹ ਖਾਧੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀਆਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਰੱਖੀ ਪਏ। ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਲਵੇ ਨਾ ਮਨ, ਵੇਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਮਨ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੋਰ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਲੈ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਵੀ ਖਿਡੌਣਾ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਘੜੀ ਪਲ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਤੇ 2 ਖਾ ਲਈਏ ਤੇ ਢਿੱਡ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਕਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛਕਾਂਗੇ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਾਂ 2-2 ਦਿਨ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਾਰਡ ਆਉਣਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਰੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, 5-7 ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਟੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਇਆ ਮਨ ਨੂੰ ਛਕਾਈ ਜਾਓ, ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਓ, ਇਹਨੇ ਰੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਪਾਓਗੇ ਓਡਾ ਭਾਂਬੜ ਬਲੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਲੱਕੜ ਪਾਓਗੇ ਉਨੀ ਭੁੱਖ ਵਧੇਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਗ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਭੱਠੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੱਕੜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਡਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਨੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ। ਤੇ ਮਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਚੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰਮੁਖ ਉਭਰੇ ਮਨਮੁਖ ਖਾਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਉਭਰੇ ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਮਨ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਸੰਤੋਖ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾਉਂਗੇ, ਭਾਂਬੜ ਬਲਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ 12 ਪਾਉਂਡ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ, 10 ਯੂਰੋ ਕੋਈ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 20 ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 'ਚ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, 20 'ਚ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਝੋਲੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਵਨੇਤ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਮਨ ਸੰਤੋਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲਾਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਦਵੈਤ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਭਰ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਛਾਣਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਨਦਰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਭਾਂਬੜ ਵਾਧਾ ਜਾਣਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗ ਬੁਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਹਫਲ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਧੰਦਾ ਕਿਰਤ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਧੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਰਤ ਵਿਅਰਥ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਜੰਜਾਲ ਬਣੇਗੀ। ਕਿਰਤ ਉਹਦੀ ਸਫਲੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਯਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਤਰਲੋਚਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾਮਿਆਂ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾਮਿਆਂ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਵੇਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਠੱਪੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਦਰਾਂ ਤੇ। ਤੂੰ ਨਾਮ ਕਦੋਂ ਜਪਦਾ ਹੈ? ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਕਹੈ ਤਿਲੋਚਨ ਮੀਤ, ਕਾਹੈ ਸ਼ੀਪੋ ਛਾਇ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾ ਲਾਵੋ ਚੀਤ। ਠੱਪੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਿਲੋਚਨਾ, ਯਾਰ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਿਲੋਚਨਾ, ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸਮਾਰ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ। ਨਾਲ ਜੌਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰੀ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ।
तो जे किसी की मान लो किसी की कैशियर की जॉब है, जबान नाल गल्लां भी करता है, अंदर तो चेते किया जा सकता है ना। हुण तुसीं बैठे इत्थे जे, ठीक है, किसी की एकाग्रता हो, जे किसी की एकाग्रता टुटी भी हो तो कई बार पिछे काम का चेता अंदर आई जाता भी वो काम रहिंदा सी अज। वो कहते चेते विच ते रखिया जा सकता है खसम नूं, जे ते चेते विच रख के धंधा करोगे तो सफल है, भावें 24 घंटे करी जाओ। जे चेते विच नहीं तो वो किरत सफली कदे नहीं हो सकेगी, तो ना उस किरत नाल तुसीं रजोगे। तो जे किरत दरम्यान चेते है तो ठप्पे लाउंदे गरीब जे नामदेव नूं भी संतोख है, आनंद विच रह रहा है। झोंपड़ी विच भी आनंद है, सानूं जिहड़ा महिलां विच नहीं मिलिया अज तक। अगे फरमाउंदे ने जन्म व्यर्थ गवा लिया, क्योंकि धंधे ते कीते कमाई ते कीती, सुखदाता मन ना वसाया, अंदर ना वसाया परमात्मा नूं। नानक नाम तिना को मिलिया, जिन को धुर लिख पाया। पातशाह आखन लगे, गुरु अमरदास फरमाउण लगे, धंधा करन दे दरम्यान जिन्हां नूं नाम मिलिया है, जिन्हां ने नाम की कमाई की है, ये कौन ने जिन्हां नूं नाम मिल गया है, नाम की प्राप्ति हो गई है। कहंदे जी जिन कौ धुर लिख पाया, जिन्हां दे संजोग चंगे सन, प्रालब्ध चंगी सी, जिन्हां दे पूर्वले कर्म जाग पए। हुण तो कई आख दिंदे भी ये 83 लाख जून हुंदी नहीं, पूर्वले कर्म हुंदे नहीं। बाणी पढ़िया करो, तुहानूं सब कुछ लभ जाएगा। बड़े इहो जिहे मूर्ख तुरे फिरदे ने, आपो अपने डंके ते चोटां लाई जाते ने। इन्हां दे डंके भी मिट्टी हो जाने ते इन्हां भी मिट्टी हो जाना। गुरु दा पंथ, गुरु घर दी मर्यादा उत्ते इदां ही गजेगी। कई आए ने इहो जिहे पसौड़ीए, तर्कवादी, कई राम राइए आए ने, मिट्टी हो गए ने, कोई पुछदा नहीं है। अज तो 10 साल पहलां तुसीं अपने इस देश इटली विच भी वेखिया होना भी घोण मोह नहीं होने ने, ते अज वेखो किदां फबदा है खालसा। वधे या घटे नहीं। हाँ, हर धर्म दे विच कई ऐसे कारण बन जाते ने। कई बार कोई डाउनफॉल आ जाता है, किते दीवे की लो मट्ठी पै जाती, किते वध बलदा है। पर जिन्ने भी देश ने वेखो, कलीनशे भी उदों वीर होया करते सन, अज सब मुड़ आए ने। विरले रह जाते ने, वो भी मुड़ आउंदे ने। इदां हौली हौली चलदा रहिंदा है। इंग्लैंड भी मैनूं कोई दसदा सी भी 65 के करीब, 1965 के करीब, कहंदे भी रौल लाउण लई 5 गुरसिख गुरमुख प्यारे ग्रंथी सिंह नहीं सी लभदे। कईयां ने रुमाल बन के कलीन छे भी गुरु का जस गाउण डए होना। ते अज 25 सिंह ला के खंड पाठ चल रहे ने। ते मैं तो कहना हुंदा भी कोई गुनाह है जिहड़े कहिंदे ना इन्ने सिंह लाए जी, ये तो पखंड है। ते मैं तो कहना हुंदा 25 साल भावें 2500 ला लो, पाठ करना पखंड है, बाणी पढ़नी पखंड है। 250 ने उत्थे बह के ताश नहीं खेडनी, 25 बैठ के उत्थे ताश नहीं खेड रहे, जुआ नहीं खेड रहे, गुरु नानक दे गुण गा रहे ने। ते जिहड़ा गुण गाउंदा है, सिमर 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 सुख पाया, सिमरन वाले नूं सुख मिलदा है, सिमरन करन वाले नूं सुख मिलदा है। भावें 2500 बह जावे, जदों ते दीवान च 20,000 बंदा इकट्ठा हुंदा, फिर ते कल नूं इह भी कोई आख दवेगा भी ये पखंड है। विखा कित्थे लिखिया दीवान च 20,000 का इकट्ठ करना? अगे जी विखाओ कित्थे लिखिया 25 सिंह पाठ कर सकते ने। जदों लिख दिता बाणी ने पाठ करो, सिमरन करो, भावें 25 करो, भावें 2500 करो, भावें 5 करो, दसो भी कोई चंगा कर्म करना है, कोई बुराई है इहदे विच? भी 25 ने बैठ के कोई गुनाह कीता है, कोई मसे रंगण वांगू कोई कर्म कीता है, फिर ते कहो पखंड है, पाठ करना पखंड है। ते जदों बाणी कह रही है भी जिन्ना पाठ करोगे, जिन्ना सिमरन करोगे सुख मिलेगा, तो लोग क्यों ना करन भाई? बहुता ध्यान ना दिया करो, ये सबूत मंगते ने।
इन्हां कोल की सबूत आ भी महाराज ने आख्या अखंड पाठ साहब नहीं करना, तुसीं ये भी लभ देण बाणी चों। असीं ठेका नहीं लिया सारी उम्र इन्हां नूं सबूत देण दा। ये मुट्ठी भर ने ते फौजां शरधा विच रहण वालियां लखां ने, दोवां चौहां नूं दबरियां कुचरियां नूं असीं जवाब दिंदे फिरीए। इन्हां नूं पुछो पखंड है, पढ़ाओ गुरु ग्रंथ साहिब विचों, तुहाडे कोल की जवाब। होवे इउं पातशाह आखण लगे, उन्हां दे अंदर बैठेगा जिन्हां ने चेते कर लिया है। ये नाम पूरबले कर्मां नाल मिलदा है, हर कोई नहीं जप सकदा। आपां नूं कई मिल पैंदे ने, आखे जी नितनेम ते करन लगी दा मन नहीं टिकदा। कारण की है? पूरबले कर्म नहीं जागे। आखे जी 84 लाख पूरबले कर्म है, जो पास पूरबला है वो लिखिया जाना है। गुरु महाराज ने पूरबला कर्म किसनूं आख्या है? जो पिछे होया है। अज जिहड़ी तड़के उठ के चौंकड़ा ला के तुसीं जपजी जाप सवैये चौपई नंद पढ़ी होया, ये बाणी पढ़ी हुई, ये पूरबला हो चुकिया है। हो सकदा इहदा फल अज ही मिल जावे। जो कल पढ़िया वो पूरबला, जो परसों पढ़िया सदियां ताई गिणती तुरी जानी है। जन्म पिछे पिछे तुरे जाने ने। उन्हां सारियां कर्मां दे हिसाब नाल जदों संजोग चंगे होण, चंगे कर्म होण, रोज तरले लैंदे रहिए, गुण गाई जाइए, एक ना एक दिन नाम सदा लई टिक जांदा। फिर जपजी पढ़दियां वासियां नहीं आउंदियां। महाराज आखण लगे, नानक नाम तिना को मिलिया, जिन को धुर लिख पाया धुर दरगाहों। पूरबले कर्म वेख के जिन्हां नूं पातशाह ने बख्शना है झोली, उन्हां दी ही नाम पवेगा। जिन्हां दी फसल ही चंगी नहीं, उन्हां दी झोली की पैना है, उन्हां नूं फल की मिलेगा। जिन्हां दी फसल चंगी है उन्हां दी झोली भर दित्ती जावेगी। महला तीजा, कर ही मह अमृत भरपूर है, मन मुखां साध ना पाया। कहते ने वो जिहड़ा नाम सी ना, मिलदा ते पूरबले कर्मां नाल है। पूरबला मतलब ये नहीं भी नितनेम करना छड्ड दो, क्योंकि जो सवेरे करोगे वो शाम तक पूरबला हो जाना है। ये सारा ही पिछली कतार विच है, इहदा ही फल दिता। तुसीं पेपर दिता ही नहीं तो तुहानूं नंबर काहदे मिल जाण? पेपर ते देना पैना है। फिर किड्डा क वधिया पेपर लिखिया है, एग्जाम दे विच कुछ लिखोगे तो उन्हें 4 अखर पाउणे ने ना। महाराज आखण लगे, वो जिन्हां नूं प्राप्त नहीं ना हुंदा वो फिर शायद लभदे ने भी बाहर कितों अमृत मिलेगा, बाणी मिलेगी। इत्थे अमृत हर जस तो भाव है। खंडे बाटे की जिहड़ी पौल है ना, कई बार इत्थे आके असीं टपला खा लैने भी अमृत ते अंदर ही है, हुण की लोड़ पई है। देखो अमृत की है? अमृत है गुरु दा हुक्म।
ਤੀਜੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੋ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਬਾਪੂ ਜੋ ਕਰ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਖੰਡੇ ਦੀ ਕੌਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਘਰ ਹੀ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਕਮ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਨੇ ਧੋਖਾ ਖਾਧਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਸਨ, ਜਿਉਂ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਭਰਮ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੜਿਓ, ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਦਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਦਸਮ ਦੀਆਂ, 2 ਬਾਣੀਆਂ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਆਦਿ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਬਸ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ, 5 ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ, 7 ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ 5 ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਸਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਕੁਝ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਖੀ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮਰਦ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਤਖੱਲਸ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿੱਧ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਖਲੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖਲੜਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖਲੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਆਪਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਪ ਜਾਪ ਸਵਈਏ ਚੌਪੀ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਪਾਠ ਸੋ ਪਾਹੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰੀਜੈ। जप जाप सवैये चौपी आनंद से, पाठ सो पाहुल त्यार करीजै। जप जी जाप सवैये चौपी आनंद पढ़ के ते पाहुल त्यार किया है। होर किसी की गवाही सानू की चाहिदी है दसो। महापुरुष सामने देख रहा है, लिखारी चंगा सी, गुरु साहब की कृपा, जिन्हों बेटा बना लिया तो ब्रह्मवेता बन गया ना, ब्रह्म ज्ञानी बन गया। खैर शहादत भी हुई ਉਹਦੀ। शहादत देण वाला सिर पातशाह दा बापू गुरु तेग बहादुर साहब दा लियाउण वाला, तली ते सिर गुरु घर बदले टकाउण वाला, जान दी ना परवाह करन वाले महापुरुष दी गवाही मन्नीए कि जिन्हें सारी उम्र गुरु घर दा खा के नमक हराम ही कीता है, उहदी मन्नीए। एक तो है हलाल करन वाला, गुरु घर दा नमक हलाल करन वाला, सब कुछ गुरु तो ही वार गया है। एक वो है जिन्हें कीता भी कख नहीं, ना कर सकिया, होरां नूं भी तोड़ रहा है।
बस हुक्म है, हुण हुक्म सी भी खंडे की पौल लैनी है तो सानू लैनी पैनी है। बीबी उही घर वसदी है जिहड़ी खसम के हुक्म में चले, तो साडा सारी कायनात का खसम कलगी तारा है, परमात्मा स्वरूप है। जे वसना है तो ये 19-21 ये नक मूँह चढ़ाया गल नहीं बननी, 19-21 कीतियां गल नहीं बननी। नहीं, सवाल मुक जाने चाहिए ने, सिर झुकना चाहिए, सिक्खी ओहदी चोली पैंदी है। जिथे सवाल ने, जिथे जुबान खसम नाल लड़ावांगे उत्थे गल नहीं बनती। दीन दुनिया के पातशाह ये गल कहिंदे ने, मन मुख ये स्वाद चाख ही नहीं सके, हुक्म मन ही नहीं सके। ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाना, भ्रम दा भरम भुलाया। कस्तूरी तुहानू ये शायद ज्ञान होवे भी बड़ा महंगा पदार्थ है, शरीर लई भी बड़ी तंदुरुस्ती देण वाला है, बेअंत दवाइयां विच पैंदा है, ते सोने वांगर उहदा मुल है। और ये कस्तूरी देवनेत दे नाल किसे विरले ही हिरन दे विच हुंदी है, हर एक दे विच नहीं हुंदी। वो जिहड़ी कस्तूरी है उहदी खुशबोई बड़ी है, इन्नी खुशबोई है भी उस हिरन दे इर्द गिर्द वो फैली रहिंदी है। और याद रखियो, हिरन का सुभाव उस मनमुख वर्गा है, जंगलों जी भज्जा फिरदा रहा, उस खुशबोई नूं लभण लई उते अंदर सी। कोई सुमेर ते चलिया जावे, जंगलों च चलिया जावे, ते जे वो समझे भी शायद उत्थे ही रब रहिंदा, जिहड़े अदब करना ये साडा फर्ज है, बाणी का फरमान है। पर जे कोई महापुरुष कल नूं आखे भी मैं ही 11वां गुरु है, 12वां गुरु है, तो समझ लियो भांडा खाली है, तां ज़्यादा खड़का करता है, तां मैं लाई हुई है। गुरु साहब आखण लगे, होरां च ही लभदा रहा, अपने च वेखिया ही ना, अंतर ध्यान होया ही ना, चौंकड़ा मारिया ही ना, लोकां दीयां पीढ़ियां फोलिया, अपने थले ते वेखिया ही कख ना। इउं पातशाह कहंदे उहनूं अमृत नहीं मिल पाया, वो हिरन वांगू दुनिया तो कस्तूरी हुंदियां भी इदां ही चलिया गया, प्राप्ति नहीं हो सकी। अगे फरमान करते ने, अमृत तज बिख संग्रह करता आप खुआया। अंदर अमृत सी, बाहर वारा ही इस कीमती जन्म नूं व्यर्थ गवा लिया। महाराज कहिंदे ने, अमृत दा व्यापार छड्ड के बिख संग्रह जहर दा व्यापारी होया बैठा है। हीरे नूं, गुरु नानक नूं, शब्द नूं, गुरु ग्रंथ साहिब नूं छड्ड के कबरां मड़ियां मसाणियां नूं, कच नूं इकट्ठा करदा फिरदा, व्यर्थ जन्म चलिया जावेगा। अगे फरमान करते ने, करता आप खुआया। ये बेचारा की करे, जैसी वासना है उधर नूं ही करते करतार ने इनू तोड़ छड्डिया है। महाराज कहिंदे ने, गुरमुख विरले सोझी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया। कोई विरला ही गुरमुख वो हिरन सी जिन्हों ये सोझी आ गई भी बाहर कख नहीं है, वो अंदर बैठा होया है। हाँ, कई बार वेख्यो तुसीं, किसी कमरे च बत्ती ना होवे, हनेरा होवे, उन्होंने जाके खोलो, 5-7-10 मिनट कुछ दिखता ही नहीं है। पर जे एकाग्रता नाल वेंदे जाओगे तो नदरी आवेगा, सब कुछ दिखेगा। अंदर पलंगा डठा है, की कुछ अंदर पिया है। असीं तो इक्के दिन ही जपजी साहिब करके आने भी अंदर चानण हो जाए। 2 मिनटां जी बाबा अतर सिंह बनन नूं तैयार होया बैठा है। वो 10-20 मिनट झाती मार, फिर अंदरों लभना है। इत्थे कुछ समा सिमरन कर, मुशक्कतां घाल, चौंकड़े मार, बंदगी कर, फिर ही अंदरों नदरी आउणा है। तू तो एक दिन ही आना जपजी साहिब करके हुण बाबा जरनैल सौ बन जा, इदां गल नहीं बननी। कई बार दे जन्म लंघ जाने ने, चानण हुंदियां हुंदियां सदियां लंघ जाणियां ने, क्योंकि हनेरा बड़ा पुराना है। तो कई बार पता ही कोई नहीं कदों नाम दे दीवे ने, जिवें एक पल विच भावें 50 साल कमरा बंद होवे, हनेरा रवे। 50 जन्मां तो अंदर हनेरा सी, पता नहीं अज दे ही पूरबला कर्म जो सवेरे जपजी पढ़ी सी, जो पूरबला हो गया, इसे ही दीवे ने नहीं चानण कर देना। ये तो उहदे हत्थ विच है, पर यतन करना पैंदा है।
दीन दुनिया दे पातशाह कहिंदे ने गुरमुखां नूं सोझी आ गई, अंतर ध्यान होना पैना, अंदर लभना पैना, बाहरों भटकना छड्डनी पैनी है। जदों ये सोझी आई है, तिन्ना अंदर ब्रह्म दिखाया, उन्हां दे विचार रूपी नेत्रां नूं खसम दिख पिया। इस शब्द के अखीर विच प्रतੱਖ दर्शनां दी गल भी करनगे। जिहड़े तर्क कर दिंदे ना जी, वो तो अनुभवी हुंदा है, दिखदा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, वो अनुभवी हुंदा है, पर जिवें कई बार बच्चियां दी जिद अगे मां झुक जाती है, पिता झुक जाता है, ना चाहुंदियां भी वो करना पैंदा है जो नहीं सी करना चाहुंदे। जदों भगत जिद करते ने ना, बाबे नामे वर्गे भी बाहर निकल हुण दुध पीना है, तो मारी दे आउणा ही पैंदा है। उन्हां दी जिद अगे निकलना ही पैंदा है। पणतां को किते पत्थरां चों रब निकलना सी, धन्ने होना कढ के बा लिया, क्योंकि बच्चियां वाला मोह है। तो जे कोई आखे बाबा झूठ मारदा किते पत्थरां च रब है, क्योंकि हर साखी नूं झूठ कह दिंदे ने, इसलिए नाल बाणी दी पंक्ति लाउणी पैंदी है। तो जे बाणी दी पंक्ति लाउण तो बाद भी साखी ते तर्क करन, ते फिर इन्हां दा सिद्धा वैर गुरु ग्रंथ साहिब नाल आपां पासे हैं। वो फिर जाणदा इन्हां नूं नੱਥ किदां पाउणी है। साफ लिखिया है, सबै कट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को विश्राम। इत्थे क्वेश्चन मार्क, राम बिना को बोलै रे, होर कौन है? हर जगह है। असी नहीं प्रगट कर पाउंदे ते ठीक है भाई, धन्ने होना कर लिया है। सारी उम्र पंडितां नूं लभा ना, धन्ने होना कर लिया है। हुण पत्थर विच उहने कोई कोठी नहीं पाई, बस उन्हें वेख्या है पंडितां वल भी ये पत्थर की पूजा करते ने, रब नूं आउणा पिया, प्रगट होना पिया भी चंगा भलिया जे तूं पत्थर चों ही कड्ढना दे इत्थे ही आना। साडे लई ओह किते भी नहीं है, क्योंकि साडी अख है नहीं है। प्रतੱਖ दर्शन भी ने दुनिया ते। नामे देख नारायण हसे, ये अंदर की गल नहीं हो रही, ये बाहर की गल है। दीन दुनिया के पातशाह साफ कह रहे ने भी इत्थे अंदर की गल है, तो हुण बाहर की अगे तुहानूं दर्शाउणगे। कहंदे ने होया की है, तिन्ना अंदर ब्रह्म दिखाया, सोझी पै गई जिस हिर नूं कस्तूरी अंदर है, रब अंदर है, उन्हां दीदारे कर लए हन। तन मन शीतल होया, रसना हर साध आया। जिन्हां प्रगट कर लिया, भड़कना मुक गई, उन्हां दे अंदर शांति आ जाती है, सहज आ जाता है, ठंड पै जाती है। चिंता वर्गे रोग मन के भांडे चों उड़ जाते हैं, जिथे बापू नानक बह जाता है, ऐसी ठंड बरसा दिंदा है। महाराज कहंदे ने जिन्हां प्रगट कर लिया, तन ते मन दोवें शीतल होने की गल कीती है। मन का शीतल होना की है? मन चिंतावां तो दूर हो गया, क्योंकि चिंता ही तपाउंदी है सानूं। मन चिंता तो, तृष्णा की अग तो रहत हो गया। तो तन की तपदा है? रोगां विच कई रोग ने इत्थे लोकां नूं। जिन्हां ने प्रगट कर लिया, उन्हां दा तन भी हरिया भरिया हो गया, रोगां तो रहत कर दिता शरीर नूं, मन भी हरिया भरिया हो गया। ऐसियां बरकतां गुरु साहब बख्शदे ने। रसना हर साध आया, जदों प्रगट हो गया, फिर जुबान विचों इस नाम नूं जपिया रस प्राप्त होण लग पिया। जिन्ना चिर रस ना आवे, उन्ना चिर बाणी नहीं जे पढ़ी जाती। वासियां उन्ना चिर ने जिन्ना चिर रस नहीं आया। सीधी जी गल है। जिते नितनेम करदियां बाघा टड्डी दा वासियां आउंदियां ने, दिल करदा है छड्डीए खैड़ा, किते अज ही रब मिल जाना, कल नूं नितनेम करांगे। रजाई निघी है, सौ जाइए घड़ी, अलार्म बंद कर दईदा भी कल नूं तड़के, समझ लिओ भी अजे स्वाद नहीं आया। ते जे अख खुल गई है, गुड़का साहिब छड्डण नूं चित नहीं करदा, समझ लिओ चस्का पै गया, स्वाद आ गया। मैं वेखे ने जिन्हां नूं ते स्वाद आउंदा, मैं वो बाणीए वेखे ने, ट्रक नोटां दा गिण देणगे, थकदे नहीं, भावें 24 घंटे गिणने पै जाण। गल की सी? रस आउंदा है नोटां चों। ते जिन्हां नूं बाणी चों आउंदा है, वो फिर बाबा अतर सिंह वर्गे, वो फिर बाबा विशाखा सिंह वर्गे, बाबा जरनैल सिंह वर्गे, भावें 18-18 घंटे चौंकड़े ला जाण, रस आ रहा है उन्हां नूं। सानूं नोटां चों आउंदा है। अपने जो किसी अगे कोई ट्रक नोटां दा रख लवे भी तेरा है, गिण के ही है साल लवांगे, भावें थुक मुक जावे।
ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੇ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਨੁਸਖਾ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਨਾਉ ਉਪਜੈ, ਸ਼ਬਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ, ਇਹ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਉ ਹੈ। ਇਉਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਸ਼ਬਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਜਪਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 200 ਫੁੱਟ ਪਰਾਂ ਖਲੋਤੇ ਜੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਗੁੰਗਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖੀ ਜਾਓ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, 10 ਵਾਰ ਮਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਲਵੇਗਾ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰਿਆ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸਭ ਜਗ ਬਉਰਾਨਾ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬੌਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਕਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਜਨਮ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਿਰਨ ਵਾਂਗੂ ਭੜਕਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਸਤੂਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਕਸਤੂਰੀ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭ ਗਈ ਫਿਰ ਭੜਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਦੌੜ ਭਾਜੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬੌਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਉਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚੌਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੇ। ਪੌੜੀ ਸੋ ਹਰ ਪੁਰਖ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਿਤ ਬਿਦ ਪਾਈਐ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵਾਦ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵਾਸੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨੀਂਦ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤਰਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਕਹੋ ਕਿਤ ਬਿਦ ਪਾਈਐ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਏ? ਕਿਸ ਨੂੰ? ਸੋ ਹਰ ਪੁਰਖ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਨਾ ਗਮਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਮ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤਿਸ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਕਹੋ ਜਨ ਕਿਉਂ ਧਿਆਈਐ। ਹੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਨੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਿਆਸੂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਢਾ, ਨਾ ਉਰਵਾਰ, ਨਾ ਪਾਰ, ਨਾ ਡੁੰਘਾਈ ਕੋਈ ਮਾਪ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੀਏ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤਿਸ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ, ਕੋਈ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਵਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਵਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ, ਦਸਮ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਂਵਲਾ ਨਾ ਉਹ ਚਿੱਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਏ? ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਪਿਆਰੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਧਿਆਈਐ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਪੀਏ ਉਸਨੂੰ, ਕੀ ਨਾ ਲਈਏ? ਜਿਹਦਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂ ਉਹ ਕਾਲੂ ਇੱਧਰ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਗੋਰਾ ਗੋਰਿਆ ਇੱਧਰ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰੀਏ, ਜਪੀਏ ਕਿੱਦਾਂ, ਨਾਮ ਕੀ ਲਈਏ? ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਤਰ, ਕੋਈ ਰੂਪ, ਕੋਈ ਰੰਗ, ਕੋਈ ਰੇਖਾ, ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਲਾ, ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਦਿਖੇ ਤੇ ਸਹੀ।
किवें उसनूं ध्याउणा करिए ते जिहड़ियां ने ध्याया जिन्हां प्राप्त कीता है ध्यान दिओ वो अगे जवाब देणगे। इन्हां ने अगला सवाल फिर रख दिता, निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह गुण गाइए। की आखिए उन्होंने, वो निराकार है, आकार उहदा है नहीं कोई, उहदा कोई आकार नहीं है। 33 सोईए पढ़े उत्थे बापू कहते ने तुसीं सांवला कह दिता जे, नहीं इदा नहीं है। तुसीं उहनूं कृष्ण समझ लिया है, तुसीं सांवला समझ लिया है, तो जे ऐसियां बरकतां ने वाकिया ही वो अकाल पुरख है। तो कहते शिकारी दे तीर नाल मरना नहीं सी चाहिदा। जे वो निर्वैर है तो फिर शिकारी ना वैर काहदा सी उसका। उत्थे ये नहीं भी कृष्ण की ताकत का खंडन किया, अवतारी पुरुष ने उन्हों का सत्कार है, पर जे कोई आखे भी सारी ही ताकत संपूर्ण कला कृष्ण विच ने, ये गल नहीं है। सारियां च ही उस अकाल पुरख की जोत है। उन्होंने हिंदू वीरां दे धार्मिक ग्रंथां च जिक्र है भी 16 कला सन कृष्ण दे कोल, ते साडे धार्मिक ग्रंथ विच जिक्र है सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी आप नारायण कलाधार। संपूर्ण कला धार के गुरु नानक आए ने। पहला जिन्ने भी महापुरुष अवतार आए ने गिणती दे स्टार लगे सन उन्हां दे। हुण संपूर्ण ताकतां सबना तो वड्डे गुरु नानक साहब ही ने, बाकी सब बेड़ियां ने, जहाज बाबा नानक ही है। गुरु महाराज कहते ने वो जिहड़ा आकार तो रहत है, जिथे निर्गुण है उत्थे उहदा कोई आकार नहीं, जिथे सरगुण है उत्थे वो गुरु नानक है। निरंजन सुरमा अंजन कहते ने कालख नूं, सुरमे नूं, कालख तो रहत है वो। हर अगम गमिया नहीं जाता, सुरती की पकड़ विच वो समुंदर है, कुजा है, ये सुरती विच नहीं हो पैंदा। उहदी समर्था बहुत है, घेरा बहुत वड्डा है। हर की गातन है को जान है, बहुत वड्डी ताकत का मालक है। उहदी अवधि नूं जानने वाला कोई नहीं है। क्या कह गुण गाइए, वो कुछ दसो तो सही भी किदां गाइए उसनूं। ये वो ने जिन्हां नूं मिलिया नहीं, ये वो हिरन ने जिहड़े आसे पासे कस्तूरी लभदे फिरदे सन। हुण दीन दुनिया दे पातशाह आखण लगे, जिस आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाइए। हुण होया की है, जिन्हां ने तरला लिया, तरले हुण आपां वेखिया है भी भखारी सारे ही आपां 50-60 कई बार वेखे ने इकट्ठे आके भीख मंग रहे हुंदे ने। ते सरदार जी गड्डी का शीशा लाउंदे ही नहीं, भावें शीशा भन देण भी सुट 10 रुपये। वो एक भखारी दे तरले ते बहुता तरस आ गया भी चलो इनू दे ही दईए, मूँह जिहा ही इदां दा बनाउंदा रोण वाला। तरला तो असीं सारे लैने आ, जिहनूं झुकना आ गया, जिहदे ते गुरु नानक नूं तरस आ गया, उहनूं आप ही बुझा दिंदा है। मंग असीं सारे रहे हैं, भखारी सारे ही उहदे दर ते भिखिया मंगदे ने, पर एक अद्धे दे भांडे 'च ही पैसा पैंदा, भाव के पदार्थ पैंदा। मंगते उहदे दर ते कई ने। जिहदे तरले ते पसीज गया है गुरु नानक सच्चा पातशाह महाराज आखण लगे, आप बुझा दवे जिसनूं आप दिखाउणा चाहे, जिसनूं आप मार्ग ते पाउणा चाहे। कईयां नूं ते पुठे राह पा दिंदा। असीं कई बार किसी तो एड्रैस पुछीए उत्थे जाना तो वो कह देंगे जी इधर है, तो अगे मंजिल कोई हुंदी नहीं, राह जाना किते होर सी। ज़्यादिआं नूं ते भुलेखे जी पा छड्डदा है माया दे राहीं। विरले नूं ही सीधा एड्रैस दसदा है भी इदां प्राप्ति है, उत्थे बैठा है। गुरु नानक क्यों दसदा है? क्योंकि उही ते निर्गुण है, वो तां दस सकदा है क्योंकि इत्थे चोला पा के वो सरगुण बनिया है, गुरु ग्रंथ साहिब बनिया है। आप वो निर्गुण स्वरूप है, अपने एड्रैस का फिर उन्होंने तो पता ही होगा। गुरु बुझा सकता है भी किस मार्ग ते चलिया उसकी प्राप्ति है। अखीरली पंक्ति विच पातशाह कहते ने, गुर पूरा वे खालिया गुर सेवा पाइए। पिछे आया भी अंदर दिखा दिता है। हुण बाहरले रस्ते का पुछया भी मिलेगा कित्थे, दिदारे कित्थे दवेगा, जिवें बाबे नामदेव नूं दिते ने, जिवें बाबे धने नूं दिते ने।
बस कहते ने गुरु ही दिखाउण दी समर्था रखता है। तो गुरु ने की विखाउणा, गुरु तो आप ही निरंकार है। जिन्हों गुरु नानक दे दीदारे हो गए, भाई नंद लाल नूं पुछियो भी रब कौन है। भाई नंद लाल नूं पुछियो भी जदों तू चौंकड़ा लाउणा है, इत्थे दरबार विच तैनूं कलगीधर तख्त ते दिखदे ने, ते जिहड़ा वो परलोक दा तख्त है उत्थे तैनूं कौन दिखता है। ते भाई नंद लाल जी कहंदे ने, बरदो आलम शाहा गुरु गोबिंद सिंह। औरंगजेब ते इत्थे तख्त दा मालक है, साडा गुरु गोबिंद सिंह लोक ते परलोक दे तख्त दा बादशाह है। साडा कोई रब नहीं है, साडा रब ही गुरु नानक है, साडा रब ही गुरु गोबिंद सिंह है। दीन दुनिया दे पातशाह गुरु ये समर्था रखते ने, रब दिखा सकते ने। सिखा अखां खुल गईयां तेरियां, तैनूं दिख पैना भी गुरु नानक ही निरंकार है, गुरु नानक ही अकाल पुरख है। गुरु ग्रंथ साहिब भी फिर पढ़ दो, वाहो वाहो बाणी निरंकार है। वो दीदारे दे दिंदा है। गुरु नानक साहिब भी कहते ने, गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते ने भी वो दीदारे भी दे दिंदा। जे कोई चाहे स्वरूप विच दीदार करने, सरगुण चोले विच वो दे दिंदा दीदारे। भगत धन्ना नाम दे वर्गे महापुरुषां दीदारे कीते सन, और तां ही ते बाणी विच लिखिया है, साफ लिखिया है, तेरे बंके लोयण दंत रिसाला, सोहणे नक जिन लमड़े बाला। सोहणे केस ने, लम्मे केस ने, तिखा तेरा नक है, रसदायक तेरे मोतियां वर्गे, नार दे दाणियां वर्गे दंद ने। ऐसा सुंदर स्वरूप है, अजे देखदा ही नहीं। हुण अंदर ते मैनूं पता नहीं किहड़े मोतियां वर्गे दंद होने ने, अंदर ते नार दे दाणे मैनूं लगदा नहीं। जिथे अंतरी विभाव है, मैं बाणी दे अर्थ दा अनर्थ ना करिया करिए आपां। जिथे अंदर दी गल चल रही है उत्थे अंदर ना रखो समझौता, ना करो बाणी दे अर्थां नाल। जिथे बाहर दी गल करदे ने, बाहर भी दीदारे बख्शदा है, अंदर भी दीदारे बख्शदा है। अंदर ये विचार बुद्ध रूपी अखां ने, बाहर प्रतख नेत्र ने, दीदारे ओ बख्शदा है। दीन दुनिया दे पातशाह साहिब सच्चे गुरु पातशाह साडे गुरु अमरदास जी दा ये संगत दे प्रथाए फरमान है। गुरु दे दर तो बिना प्राप्ति नहीं, गुरु ही दसदा है। कस्तूरी अंदर है, आसे पासे भड़कना छड्ड दे। ये सारी ही खेड गुरु दे दर तो चलती है। सो महाराज सच्चे पातशाह ये फरमान करते ने, माया ममता मोहनी जिन बिन दंता जग खाया। बचेगा वो जेड़ा गुरु दे लड़ लगे, वो तो माया विच रहिंदियां, दौलतां विच रहिंदियां, शोहरतां विच रहिंदियां भी जीवन नूं सफला कर जांदा है। कमल किते छप्पड़ तो बाहर थोड़ी आया सी, छप्पड़ विच रहिंदियां ही उपरामता हासिल है। सो पातशाह ये गल समझाउंदे ने, भाई जी घर ही प्राप्ति है, अंदर ही प्राप्ति है। मिलेगा उसनूं जेड़ा गुरु दी विचार ते चलेगा, गुरु दे हुक्म विच चलेगा। चंगे कर्म करिए, संजोग बन जाण, उहदी सानू प्राप्ति हो सके। इउं पातशाह फरमान करदे ने, हसंदियां खेलंदियां पहनंदियां खावंदियां विचै होवै मुक्त। उहदे धंधे भी कीते सफले, किरत कीती सफली। जिन्हां गुरु नूं चेते रखिया, नानक सतगुर भेटिया पूरी होवै जुगत। गुरु नूं मिल के ही जीवन सफला है। इउं पातशाह दा ये फरमान है जी। भुल चुक दी खिमा, विचार करदियां त्रुटियां रह जांदियां ने। गुरु महाराज पातशाह दियां संगतां ने बख्श देना जी। अगम बोध बाणी सबना दे हिरदे विच पातशाह वसाउण। जो गुरु वाले ने, खंडे दी पौल दे धारनी ने, मुबारक है गुरु दी सिੱਖੀ उन्हां नूं। जिन्हां ने पौल नहीं छकी, वो खंडे दी पौल छक के गुरु वाले बनन। और दीन दुनिया दे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी दे चरनां विच, गुरु गोबिंद सिंह जी दे चरनां दे अंदर जगह उन्हां नूं प्राप्त हो सके। असीं उस पातशाह दे नादी पुत्र बन सकीए जी। दो पंक्तियां पढ़ के गज वज के फतेह बुलाइए जी।
जिस आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाइयै, गुर पूरै वे खालिया गुर सेवा लाइयै। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ग्रंथी ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾ